All right, everyone. So on your screens, we have a schedule to be converted into a histogram, but this particular schedule has unequal class intervals, as you can see. Now 0 to 10 has a width of 10 marks, 10 to 20 में भी width है 10 marks की, but 20 से 40 में width increase होके होगी 20 marks की. तो अगर कोई भी स्टूडेंट हिस्टोग्राम को ऐसे डिज़ाइन करता है कि 0 से 10 में 2 बच्चे हैं और 10 से 20 में 4 बच्चे हैं, 10 से 20 में 4 बच्चे हैं एंड 20 टू 40 में भी 4 बच्चे हैं. थोड़ा सा मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे. नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि 20 टू 40 में भी हम सर 4 कर देते हैं, so now this is wrong, because if you have taken intervals of 10 over here, 10 over here, then what I'm gonna look at is कि 20 से 30 में भी 4 बच्चे हैं और 30 से 40 में भी 4 बच्चे हैं. I'm not gonna look कि आपने बीच में लाइन नहीं डाली, but how I'm gonna look at it, I'm gonna look at it like this. I'm gonna look at it like this. Although there is no visual line in between, but because the gap is 10 over here, so I'm gonna look the histogram like, because this is how it should look like. You all will agree with me that this is a very ugly presentation of anything you can see, but how it should be made, I'll tell you. Now if the point is कि आप 4 20 से 30 में ले रहे हो, हालांकि टोटल इज 4, आई एग्री कि 20 टू 40 में 4 है, सो यू कांट से कि यहाँ पर 20 टू 40 में यहाँ पर ये 4 होगा. दिस इज रॉन्ग टू से लाइक दैट. You have to divide 4 among these two like this. Some of the students have got my point what I just said, so I'm gonna plot it like that. So what if I'll do 20 to 40 में instead of 4 I divide to both of them like this. Now even if I'm gonna look at it like the divided line like this, so you can see for 20 to 30 there are 2 students, for 30 to 40 there are 2 students, that makes a total of 4 students. So I have divided the students equally. हालांकि in reality I don't know कि इन 4 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिनके इस रेंज में रहे होंगे और कितने बच्चे हैं जिनके इस रेंज में रहे होंगे, बट द लीस्ट आई कैन डू इज टू टेक एवरेज इन बोथ द डायरेक्शंस. बिकॉज यहाँ पर मैंने 10 का गैप लिया है, यहाँ पर मैंने 10 का गैप लिया है, देन हाउ एम आई अलाउड टू टेक अ गैप ऑफ 20 इन जस्ट वन क्लास? It shouldn't be allowed at all. That makes some sense, right? So just to avoid this confusion, you can't draw, now you can't even draw a line like this in between, because this is against the schedule. Schedule is saying that for 20 to 40 you should plot 4. For 20 to 40 you can't plot 4 because it will make 8, because for 20 to 30 it will be 4 और 30 से 40 के लिए भी वो 4 हो जाएगा, दोनों में 4 4 हो गया तो वो 8 हो जाएगा. इसीलिए इसको डिवाइड कर दो 2 से और दोनों क्लासेस में इसको इक्वली डिवाइड कर दो. तो 2 निकल के आया आपका, तो 2 पे मैंने प्लॉट कर दिया है. सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट फॉर 20 टू 30 देयर आर 2 स्टूडेंट्स, फॉर 30 टू 40 देयर आर अगेन 2 स्टूडेंट्स. सो 2 plus 2 is then 4. So how many of you have got the logic? Please raise your hand or type clear in the chat section, else I'm going to repeat what I just said. Please confirm if the topic is clear to all of you. Okay, one student is saying कि सर एक बार repeat कर दो. For sure I'm gonna repeat it, ठीक है, but with different example. Fine, क्योंकि जिन बच्चों को इससे क्लियर हो गया वो बच्चे बोर हो जाएंगे दोबारा सुन के, तो let me take another example for clarifying this case. All right, sir. Now what we are gonna do right now is that we are gonna exceed this x-axis. x-axis को exceed कर देते हैं थोड़ा सा और. Okay, let me take it like this for 60, 70 and let's go till 80. Okay, let me take x-axis over here. ठीक है. Now अब मैंने लिया है 20 से 40, 20 से 40 तक का जाएगा
देन आगे हमारा 80 तक का यहाँ पर गैप है। फोर्टी से 50 में 3 बच्चे ले लेते हैं। देन 50 to 50 में हम 9 बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करेंगे ना, उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। नाउ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कैन एनीवन सी दैट द ग्राफ्स आर दैट द इंटरवल्स आर अनइक्वल? द इंटरवल्स आर अनइक्वल। 0 to 10 में 10 का गैप दिख रहा है सबको, 10 से 20 में 10 का गैप दिख रहा है, 20 से 40 में 20 का गैप है, 40 से 50 में 10 का गैप है, 50 से 80 में भी क्या 30 का गैप है। नाउ अकॉर्डिंग टू यू ये जो हिस्टोग्राम यहाँ बनेगा इसमें गैप कितने कितने का होना चाहिए? प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन, प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन। आपके अकॉर्डिंग गैप कितने का होना चाहिए सबके अकॉर्डिंग? वेरी गुड, आदित्य सेइंग सर 10 का होना चाहिए। दोज हु अग्री विद आदित्य प्लीज रेज योर हैंड्स। कनक इज ऑल्सो सेइंग 10 कि सर जो हिस्टोग्राम बनना चाहिए वो 10-10 के गैप्स में बनना चाहिए। ओके, अजीज अग्रीज, शिव ऑल्सो अग्रीज। ऑल राइट गाइज, थैंक्स फॉर अग्रीइंग टू द फैक्ट हिस्टोग्राम शुड बी इन 10। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10 वाले हैं वहाँ तो कोई टेंशन है नहीं, वहाँ तो मैं सीधा सीधा प्लॉट कर सकता हूँ। जैसे कि जो मेरा पहला वाला है 0 से 10, इसमें 2 है, तो 0 से 10 में मैंने यहाँ पर 2 प्लॉट कर दिया। कलर चेंज करता हूँ ज़रा, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 से 20 में 4 है, यहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैंने चलो प्लॉट कर दिया। फिर 20 से 40 में 20 का गैप है, तो मुझे यहाँ दिक्कत आने वाले, तो मैं अभी ये फिलहाल तो छोड़ रहा हूँ। 40 से 50 में भी 10 का गैप है, तो ये 3 पे आ जाएगा, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे दिक्कत का आने वाली है, मुझे जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है इस रीजन में और इतने रीजन में। जो बच्चे मेरी इस बात से अग्री करते हैं वो बच्चे एक बार याद कर दो या फिर चैट सेक्शन में अग्री लिख दो कि प्रॉब्लम आएगी इन दोनों केसेस में। बाकी तो 10-10 के थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ओके, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अग्री विद मी। सो यहाँ 20 का गैप है और यहाँ 30 का गैप है, तो आई कांट टेक डायरेक्ट वैल्यूज। अब जहाँ पे 10-10 का गैप था वहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज ले ली, तो मैं 10 वाले हटा देता हूँ। बट यहाँ 20 का गैप है और यहाँ 40 का गैप है, तो गैप तो 10 का होना चाहिए ना। गैप तो कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए बॉस। यहाँ 20 का गैप है, तो यहाँ गैप 20 का है, बट गैप होना चाहिए था कितने का? 10 का। तो डिवाइड कर दो, तो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर निकल के आएगा ना, इस नंबर को आपको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। और यहाँ पर अगर आपका 2 निकल के आ रहा है, मैं समझाऊंगा इसका ये लॉजिक है, अभी फिलहाल इतना समझो कि अगर आपका गैप यहाँ 20 का आ रहा है तो दोनों को आधा आधा कर दो। नंबर 4 है ना, इसके आगे फ्रीक्वेंसी 4 है, तो टेक्निकली तो अगर आप गलत सोच रहे हो तो आप बोलोगे सर 20 से 40 तक ये 4 जाना चाहिए, 20 से 40 तक ये 4 जाना चाहिए, लाइक दिस, विच इज रॉन्ग। बिकॉज 20 से 40 आप प्लॉट कर ही नहीं सकते हो इस फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि अगर यार तुम 20 से 40 ऐसे प्लॉट कर रहे हो जस्ट लाइक दिस, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 20 से 30 में भी 4 है और 30 से 40 में भी 4 है। हालांकि बीच में कोई लाइन नहीं है, बट आई एम गोना लुक एट इट लाइक दिस वे ओनली ना, बिकॉज हाउ कम आई कैन एज्यूम कि यहाँ चलो 20 का इज ऑल राइट, यहाँ 10-10 का इज ऑल्सो ऑल राइट। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी और नॉट। अगर यहाँ तुमने जो ये ग्राफ बनाए हैं 3, ये 10-10 के गैप में बनाए, देन हाउ कैन यू मेक वन पर्टिकुलर बार डायग्राम विद दिस सेम लॉजिक? इट्स नॉट पॉसिबल. So we need to divide this frequency within this interval. So for 20 to 40 there are 4 students. Now I don't know how many students scored between this range and how many students scored between this range. Now there are total 4 students. Now it is possible कि 20 से 30 में हो सकता है एक बच्चा रहा हो और 30 से 40 में 3 बच्चे रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ एक यहाँ, बट हाउ कैन आई एज्यूम दिस थिंग व्हेन आई हैव नॉट गिवन एनी? तो आई एम गोना एवरेज इट आउट कि यार दोनों जगह 2-2 बच्चे होंगे, और मैंने इसको एवरेज कर दिया कि 20 से 30 में भी 2 बच्चे ले लिए मैंने और 30 से 40 में भी मैंने यहाँ पर 2 बच्चे। ना आई एम नॉट गोना लुक एट इट टुगेदर, आई एम नॉट गोना से कि यहाँ पर ऐसे ये 2 है। व्हाट आई एम गोना से इज कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। व्हाट डज इट मेक 4? सो आई हैव एवरेज इट आउट दैट 20 से 40 की रेंज में टोटल 4 बच्चे हैं, वो क्वेश्चन में दे रखा है, बट आई कांट ड्रॉ इट एट 4 बिकॉज इट विल मेक 8. नाउ फॉर द लास्ट वन, नाउ दिस 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जिन बच्चों को ये नहीं हुआ उनको इससे क्लियर हो जाएगा.
50 से 80 में 9 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 80 में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं 9 स्टूडेंट्स करूंगा तो मतलब 50 60 में भी 9 हो जाएंगे, इसमें भी 9 हो जाएंगे, इसमें भी 9 हो जाएंगे, तो टोटल तो 27 बच्चे हो गए, विच इज रॉन्ग। टोटल तो 9 ही बच्चे हैं ना, तो हाउ कम दे कैन बी 27? सो अब ये 9 बच्चे इस रेंज में है, तो 3 बच्चे यहाँ, 3 बच्चे यहाँ, 3 बच्चे यहाँ, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। सो दैट्स हाउ यू मेक हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो 3 पे प्लॉट होगा ये वाला, ऐसे प्लॉट होगा। वाई एम आई प्लॉटिंग इट एट 3? बिकॉज मैं इसको ऐसे देखूंगा, कैसे देखूंगा कि 50 से 60 में भी 3 बच्चे हैं और 60 से 70 में भी 3 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 3 बच्चे हैं, तो टोटल 9 बच्चे हो गए। सो बट आई एम नॉट गोना मेक लाइन्स लाइक दिस, बट नाउ माई हिस्टोग्राम इज कंसिस्टेंट, इजंट इट? अब मेरा जो हिस्टोग्राम है वो 10-10 के इंटरवल्स में है। अब जो मेरा हिस्टोग्राम है वो 10-10 के इंटरवल्स में हो गया। नाउ दैट्स व्हाट आई नीडेड टू डू। तो फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट कंफ्यूजिंग कि सर ये डिवीजन कैसे लेनी है, अगर कोई नंबर अजीब सा आ जाए तो डिवीजन का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये करना कैसे। देयर इज़ वन फॉर्मूला टू गेट दीज नंबर। जैसे यहाँ पर आपने 2 निकाला, यहाँ पर आपने ये 3 निकाला, बाकी तो ये फिक्स थे, बाकी यहाँ तक तो ये 2 पर गया था, ये 4 पे था और ये वाला भी 3 पे था ना, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इन तीनों में दिक्कत हुई थी इसमें और इस वाले में, है ना, क्योंकि यहाँ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को निकालना है यहाँ पर एक एडजस्टिंग फैक्टर और आपको उसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। एडजस्टिंग फैक्टर आप यहाँ पर निकाल सकते हो अलग से। आई विल शो यू एडजस्टिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है। एडजस्टिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए होगा विड्थ ऑफ द गिवन क्लास दैट यू लाइक टू एडजस्ट। आपको इसको एडजस्ट करना है तो इसकी विड्थ क्या है? 20। गैप देखना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ विड्थ यानी कि गैप ऑफ एडजस्टिंग क्लास, शॉर्ट में लिख दूँ एडीजे, एडजस्टिंग क्लास, क्योंकि आगे मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट ये विड्थ लिखा है, ये एच है, थोड़ी सी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी, WIDTH विड्थ। नीचे लिखेंगे विड्थ ऑफ या गैप ऑफ लोएस्ट क्लास, या फिर सिंपली लिख दो लोएस्ट विड्थ। लोएस्ट विड्थ इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन द लोएस्ट विड्थ। सबसे कम विड्थ कितनी है? तो लोएस्ट विड्थ तो 10 ही है ना। तो अब देखो जरा, आपको एडजस्ट किसको करना है? इसको करना है। इसकी विड्थ कितनी है? 20। और लोएस्ट कितनी है? इसकी भी 10 है, गैप इसका भी 10 है, इसका भी गैप 10 है और इसका भी गैप 10 है। तो 10-10 का गैप जो है वो लोएस्ट है। तो डिवाइड करोगे, जो नंबर निकल के आया 2, इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी लिखोगे, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो जो टिक वाले हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना। इसको 2 रखो, इसको 4 रखो और इसको 3 रखो। जो सर्कल वाले हैं इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा आपका? 4 को आपने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो इसलिए ये 2 पे प्लॉट करा है, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर जो विड्थ है वो 30 की है, ध्यान रखना, ठीक है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अगर आपको अब इसको एडजस्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है? विड्थ ऑफ एडजस्टिंग क्लास। तो इसका जो गैप होगा वो 30 का है ना, 30 का है। तो अगर इसका 30 का गैप है तो 30/10 होगा, 30/10 होगा, दैट इज 3। 30/10 होगा। तो अब ये 3 आया, तो अब ये 9 डिवाइड होगा 3 के साथ और यहाँ पर आ जाएगा ये 3, तो ये 3 पे प्लॉट। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो एक मैंने आपको ये समझा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ इसके बाद, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू attempt it. Fine. So this is the concept of histogram with unequal class interval to divide the frequency accordingly. Now I know that this formula is not needed for most of you, but in case you forget how to do this thing, you can always use the formula. I am showing you one question. Now I want all of you to attempt this question and send me the answers on WhatsApp. Please take screenshot of this question and give me the answers on WhatsApp. This question solve करो, हिस्टोग्राम बनाओ अनइक्वल क्लास इंटरवल में, मुझे WhatsApp पे सबमिट करो।